ਹੈਲੋ एवरीवन, ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PSTCL ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ AE ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੇਪਰ 6 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਫਸਟ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ एग्जाम ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ कर रहे हैं ਉੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪੋਸਟ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ एग्जाम ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਾਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਮਝ ਲਿਓ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन तो। विच इज़ द लार्जेस्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इन्हां दे विचों नॉन कन्वेंशनल, वैसे तो सारे नॉन कन्वेंशनल ने बट लार्जेस्ट सोर्स किहड़ा है? लार्जेस्ट सोर्स हैगा सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी जिहड़ा वा वो लार्जेस्ट सोर्स है, लार्जेस्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इन विच, सैकेंड क्वेश्चन की है, इन विच विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग मैथड the heating is based on the I square effect। ठीक है, I square effect क्योंकि हुण तुसीं इत्थों ही देख सकते I square effect। ठीक है, I की है करंट, R की है रजिस्टेंस। ठीक है, ये फिर किहड़ी हीटिंग आ जाएगी? रजिस्टेंस हीटिंग आ जाएगी क्योंकि जदों आपां लार्ज करंट जिहड़ा वा जां मतलब करंट जिहड़ा वा हाई रजिस्टिव मटीरियल दे विचों पास करवावांगे तो उहदे विच की पैदा हो जाएगी? हीट पैदा हो जाएगी, हीट एनर्जी सानूं मिलेगी। नेक्स्ट है, इन अ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अ रीडिंग इज रिकॉर्डेड एज 35.70 डिग्री, 35.70 डिग्री सेल्सियस। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर। ठीक है, एक फिगर, दो फिगर, 7 3 फिगर तो 0 4 फिगर। मतलब इसका आंसर की है 4। ठीक है, ए आंसर जिहड़ा करैक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप डज नॉट सफर फ्रॉम स्ट्रोबोस्कोपिक इफैक्ट। स्ट्रोबोस्कोपिक इफैक्ट की हुंदा है? वैसे पहला आप इफैक्ट देख लीए इफैक्ट की हुंदा है। कई बार की हुंदा कि तुसीं देखो कि फैन जिहड़ा वा जदों चलदा है अपनी स्पीड ते चलदा हुंदा ते उहदे ते जे लाइट फॉल करे, खास करके किहड़ी जिहड़ी फ्लोरोसेंट लैंप दी आ ते की होएगा? तुहानूं इदां लगेगा जिद्दां फैन जिहड़ा रिवर्स घुमदा पिया, जिहड़े इहदे मतलब विंग्स ने वो रिवर्स घुमने स्टार्ट हो गए ने ਜਾਂ ਸਲੋ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੋਬੋਸਕੋਪਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਟ੍ਰੋਬੋਸਕੋਪਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਨਕੈਂਡੇਸੈਂਟ ਲੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਮਰਕਰੀ ਵੈਪਰ ਲੈਂਪ ਮਤਲਬ ਗੈਸੀਅਸ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲੈਂਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਵਾ ਇਹ ਇਨਕੈਂਡੇਸੈਂਟ ਲੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਨਕੈਂਡੇਸੈਂਟ ਲੈਂਪਸ ਹੈਵ ਮਿਨੀਮਲ ਫਲਿੱਕਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਥਰਮਲ ਰੇਡੀਏਟਰਸ, because they are thermal radiators ਹੁੰਦੇ ਨੇ। next है, if the induction motor is made to run at synchronous speed the value of slip will be। ਹੁਣ value of slip मतलब synchronous speed ਦਾ मतलब कि ਜਿਹੜੀ ਰੋਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਉਹ synchronous speed ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲਿਪ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ns ਮਾਈਨਸ ਹੁਣ n ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ns ਇਨਟੂ 100। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ NS ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਵਾ? n ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? NS ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ NS ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 0 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ NS ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਲਿਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, 0 ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਮੈਥਡ ਆਫ ਐਨ ਆਲਟਰਨੇਟਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਇਟਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ, ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 0 ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਮੈਥਡ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆਫ ਦ ਕੋਇਲ ਇਫ ਐਨ EMF ਆਫ 1 volt is induced in it when the current flowing through it changes at the rate of 5 ampere per second। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? गिवन की है? गिवन हैगा E की है वोल्टेज जी इंड्यूस हो रही है वो कितनी है? 1 वोल्ट। L नोट, L अं फाइंड करना है। फिर di/dt जोड़ा करंट चेंज हो रहा है di/dt ये कि इक्वल आ जाएगा 5 एम्पीयर पर सैकेंड। ओके,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ फाइंड की करना है, L फाइंड करना है, इंडक्टेंस आप कढ़नी है, E इज इक्वल टू L di/dt। हुण L आप फाइंड करना है, सिंपली आप फाइंड की करना है, L फाइंड करना है, इस करके E की जगह तो 1 पुट करो, L कितना है वो फाइंड करना है 0.5 एम्पीयर पर सैकेंड। ओके, L नूं इधर रहन दो, 1/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.2 H। तो ये की है सैल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू, इसका आंसर की है सी। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ आ सिनुसॉइडल करंट, इट इज़ पीक वैल्यू ऑफ इट्स जी यदि पीक वैल्यू हैगी आ वो हैगी 10 एम्पीयर, मतलब आई एम की वैल्यू कितनी है, आई एम हैगी है 10 एम्पीयर, जिन्होंने आई पी भी कहते हैं और आई पी एम्पीयर। तो आप करना की है एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू की होंगी है आई ए वी इज इक्वल टू 0.37 इंटू आई एम। हुण 0.37 इंटू 10 कितना आ जाएगा 6.37 एम्पीयर, कितना आ जाएगा डी आंसर इहदा आ जाएगा। नैक्सट है अ 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज़ सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, एफ लिख लीए। वैन द फ्रिक्वेंसी वैन द रोटर इज स्टेशनरी द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट इज, ये आप रोटर करंट की फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी आ, नाल ही उन्हें कहता जो रोटर है वो स्टेशनरी है, स्टैंड स्टिल है। जो स्टेशनरी होएगा ठीक है एफ आर आप फाइंड करनी है, जो स्टेशनरी होएगा उदों एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस की वैल्यू हो जाएगी 1, एफ कितना दिता है वा 50, तो ये कितना आ गया 50 हर्ट्ज। ठीक है एट स्टेशनरी, ठीक है, ਜਾਂ कह लो कि जो मोटर नहीं मतलब रोटर नहीं घूमता होंदा, रोटर स्टेशनरी है उदों रोटर की फ्रिक्वेंसी कितनी होएगी 50 हर्ट्ज होएगी। ओके, ਇਹਦਾ ਕੀ आंसर आ जाएगा 50 हर्ट्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिव ट्रांसड्यूसर, थर्मोकपल। थर्मोकपल थर्मोकपल की होंदा है बेसिकली एक ना गैल्वेनोमीटर है, टू डिसिमिलर मैटल्स होंदियां ने, दो आप वक्-वक् मैटल्स यूज़ करते हैं, एक नूं आपां जिहड़ियां दो वायरस ने अलग अलग मैटल्स दियां ने, एक नूं कोल्ड जंक्शन ते रखा होया, एक नूं हॉट जंक्शन ते रखा होया वा। ठीक है, ये की है टैंपरेचर ग्रेडियंट के नाल की है करंट जो फ्लो करना शुरू कर देगा, मतलब EMF इनू एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए थर्मोकपल नूं, वो अपने आप ही EMF इंड्यूस कर दिंदा है, तो जिहड़ा कि आप बाद विच टैंपरेचर मेजरमेंट करने के लिए यूज़ कर लेंगे हैं। ठीक है, इसका मतलब की है ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, बाकी सारे पैसिव ट्रांसड्यूसर ने। द पैटर्न यूज टू मैजर फेज एंड फ्रिक्वेंसी विद अ कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप, CRO दे विच जिहड़ा आपां ये फेज ते फ्रिक्वेंसी पैटर्न यूज़ करते हैं, वो किहड़ा पैटर्न है लिजासस पैटर्नस। ठीक है, लिजासस पैटर्न। ओके, सी ऑप्शन है दी। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करैक्ट फॉर द आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के पहला के वेख लीए, की होंगी है, के होंगी है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, की होंगी V2 डिवाइडेड बाय V1, I1 डिवाइडेड बाय I2 एंड N2 डिवाइडेड बाय N2 डिवाइडेड बाय N1। हुण देखो आ पहली ऑप्शन भी गलत होगी, दूसरी भी गलत होगी। ठीक है, तो ये जी सही आइडियल ट्रांसफार्मर दे विच वेखो हुण इनू आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीए V1 इंटू I1 ओके इज इक्वल टू V2 इंटू I2। ठीक है, ये जी सही ऑप्शन है वो की है डी है। नैक्सट है विच स्पोर्ट ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैज़ लीस्ट लाइफ। स्टील स्ट्रक्चर दिता होया, एलूमीनीयम अलॉय स्ट्रक्चर दिता होया वा, कंक्रीट पोल्स दिते हुए आ ते वुडन पोल्स दिते हुए आ, इन्हां दे विच सब तो घट लाइफ किहदी है, सब तो घट लाइफ हैगी आ वुडन पोल्स की। ओके, सब तो घट लाइफ किहदी है वुडन पोल्स की है। नैक्सट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड यूज्ड फॉर फाइंडिंग वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर वाज प्रपोज्ड बाय पोटियर। ठीक है, किहड़ा मैथड वा जिहड़ा पोटियर ने प्रपोज किया है वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करने वास्ते। ठीक है, वो मैथड है जीरो पावर फैक्टर मैथड, जीरो पावर फैक्टर मैथड। ठीक है, नेक्स्ट है डिसाउटीज ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। डिसाउटी ब्रिज आप क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आप यूज़ करते हैं कैपेसिटर्स
विद डायलैक्ट्रिक लॉस। ठीक है, कैपेसिटेंस आपां फाइंड करने वास्ते ना यूज़ करते हैं, कैपेसिटर की जिहड़ी कैपेसिटेंस हुंदी आ उन्होंने फाइंड करने वास्ते आपां यूज़ करते हैं। The shaft torque of a DC motor is less than its armature torque because, ठीक है, जी शाफ्ट टॉर्क है वो जी टॉर्क डेवलप हो रही है आर्मेचर टॉर्क है वो हमेशा घट होंगी है। क्यों? रोटेशनल लॉसिस करके। ठीक है, रोटेशनल लॉसिस का मतलब फ्रिक्शनल लॉसिस भी इनू कह दें आप, फ्रिक्शनल लॉसिस। नेक्स्ट है अ सिनोसाइडल करंट इज एक्सप्रेस्ड एज I is equal to 100 sin 100 pi t। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल। टाइम पीरियड के इक्वल होंदा है 1/f। ठीक है, हुण सानू f फाइंड करनी पएगी पहला। ठीक है, t इज इक्वल टू 1/f, t इज इक्वल टू 1/f। f की है फ्रिक्वेंसी। हुण इस चीज़ को आप कंपेयर करना है। ठीक है, ओमेगा टी इज इक्वल टू 100 पाई टी। क्लीयर, टी ना टी कैंसल। हुण मेगा की वैल्यू होंगी है 2πf। मेगा को आप 2πf लिखते हैं। ये की आ गया 100 पाई, पाई ना पाई कैंसल, 2 दे नाल आपां 50 कैंसल, अपना 100 कैंसल किया कि आ गया 50 आ गया। एफ की वैल्यू कितनी आ गई 50। हुण टी आपां टाइम पीरियड फाइंड करना, ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ओके, ये कितना आ गया 50। यदी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यदी वैल्यू आ जाएगी 20 मिली सैकेंड, 20 मिली सैकेंड। ठीक है, आ जाएगी 0.02 तो इनू आप 20 मिली सैकेंड भी लिख सकते हैं। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टैरिफ। इन्हां दे विचों किहड़ा जिहड़ा मतलब टैरिफ बिल्कुल सिंपल है वो है स्ट्रेट मीटर रेट। स्ट्रेट मीटर रेट ये सिर्फ जिन्नी आप एनर्जी कंज्यूम करते पे हैं वह ही सानू बिल आता है। अमाउंट टू बी चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी कंज्यूम्ड इन KWH। जिन्नी आप KWH मतलब जिन्नी एनर्जी कंज्यूम की वो हिसाब के नाल ही सानू बिल आएगा स्ट्रेट मीटर रेट दे विच। नैक्सट है इन इंडक्शन मोटर द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क इज़। कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क केड़ी हुंदी है जो R2 इक्वल हो जाए स्लिप इंटू रिएक्टेंस से तो उदों मैक्सिमम टॉर्क जी वो पैदा होंदी है। ओके, ए ऑप्शन जी करैक्ट ऑप्शन है। नैक्सट है इन थर्मल पावर प्लांट फीड वाटर फॉर बॉयलर इज हीटड इन दी इकोनोमाइजर। ठीक है, इकोनोमाइजर दे विच फ्लू गैसिस निकलदियां ने तो उहदे नाल ही ये जिहड़ा साडा फीड वाटर है वो जिद्दां मतलब कह लो ना वेस्ट हीट ऑफ फ्लू गैसिस नूं आपां यूज़ करते हैं जिहड़ा पानी बॉयलर नूं देना हुंदा इहनूं गर्म करने वास्ते। ठीक है, इनू फीड वाटर हीटर भी कहते हैं। ठीक है, इनू फीड वाटर हीटर भी कहा जाता है। ओके, इकोनोमाइजर का काम की हुंदा जिहड़ा आपां बॉयलर दे विच पानी देना हुंदा है उन्होंने फ्लू गैसिस दे नाल गर्म कर दिंदा है। इहदे नाल की है जिहड़ा बॉयलर दे विच फ्यूल जिहड़ा वा घट यूज़ होएगा। नैक्सट है अ रजिस्टर इज रेटेड फॉर 100 ओम 1 वाट डिटरमिन इट्स मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग। आप वोल्टेज रेटिंग कढ़नी है। वोल्टेज रेटिंग कितना कर सकते हैं पी के इक्वल होंदा V² दे। ठीक है, आप वोल्टेज रेटिंग कढ़नी है ये आ जाएगा PR और V इज इक्वल टू √PR। ओके, हुण P की वैल्यू कितनी दी आ 100 P की वैल्यू 1 है तो R की वैल्यू कितनी है 100 है। ठीक है, R इज इक्वल टू 100 ओम, P इज इक्वल टू 1 वाट, ये कितना आ गया V इज इक्वल टू √100 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ओके 10 वोल्ट आ जाएगी। ए ऑप्शन जी आ वो करैक्ट ऑप्शन है। नैक्सट है इन कैथोड रे ट्यूब CRT हाईएस्ट पॉजिटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड ऑन। ये हाईएस्ट जोड़ा पॉसीबल कह लो कि पॉजिटिव पोटेंशियल जोड़ा वा अप्लाई करते हैं ये पोस्ट डिफ्लैक्शन एसलरेटिंग एनोड से करते हैं। ओके, पोस्ट डिफ्लैक्शन एसलरेटिंग एनोड से करते हैं। नैक्सट है इन DC मोटर द टॉर्क विच इज अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क इज कॉल्ड शाफ्ट टॉर्क। ठीक है, शाफ्ट टॉर्क आखते हैं जेडे क्योंकि जी शाफ्ट तो सानू अवेलेबल होएगी मान लो ये मोटर है कोई साडे कोल
तो ये जी शाफ्ट तो टॉर्क होएगी उहदे नाल ही आपां कोई ना कोई अगे लोड अपना कनैक्ट किया होएगा तो उही टॉर्क ही जी लोड नूं ड्राइव करती है। इस करके की है जी डूइंग यूजफुल वर्क जी टॉर्क यूजफुल वर्क करती है उन्होंने शाफ्ट टॉर्क आखते हैं। नेक्स्ट है टू मैग्नेटिक सर्किट्स हैविंग reluctance S1 and S2 are connected in parallel, total reluctance of the circuit will be, total reluctance आप फाइंड करनी है। ठीक है, ये आ गया एक कॉइल ए आ, दूसरा कॉइल ए आ, दो कॉइल आ गए, यदि S1 वैल्यू यदि S2 वैल्यू है। जिदा आप सिंपली 1/ST आप टोटल रिएक्टेंस करनी है कि आ गया 1/S1 प्लस 1/S2 तो ST के इक्वल आ जाएगा, इनू क्रॉस मल्टीप्लाई किया इत्थे तो ये ST के इक्वल आ गया, इनू आप उल्ट करके लिखता ये आ जाएगा S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। ठीक है, और S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। ओके, यदा जो सही आंसर है वो की है डी है, डी ऑप्शन जी सही है। नैक्सट है इन DC जनरेटर द करैक्टरिस्टिक्स गिव्स रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज एंड द लोड करंट इज कॉल्ड एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक्स। इनू की कहते हैं एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक्स। ओके, यदि ऑप्शन जी सही की है सी ऑप्शन सही है। पावर इज मैजर्ड इन जूल पर सेकंड्स, जूल्स पर सेकंड्स। ओके, हुण इहदे विच की आ एनर्जी किहदे इक्वल हुंदी है, एनर्जी इज इक्वल टू जूल कहते हैं। ठीक है, और KWH भी इनू कह दीदा वा, समझण दी गल आ। ये की है टाइम। ठीक है, जेकर मन लो KWH नूं मैं H दे नाल डिवाइड करदा वो की बन गया किलोवाट, मतलब पावर का यूनिट बन गया। हुण ये की है जूल है, उपरला ये की है ये जूल है, डिवाइडेड बाय ये टाइम है, टाइम नूं मैं सैकेंड च लिख लिया। ठीक है, इस करके सही यूनिट की है, सही ऑप्शन केड़ी है बी ऑप्शन है, जूल्स पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस रोलर टाइप इलैक्ट्रोड्स। यदि सही ऑप्शन है सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग दे विच ना इस तरीके के इलैक्ट्रोड होंदे ने जिहड़े कि मूव करते हैं तो ये ना जॉब नूं रख दिता जाता है इस तरह। ठीक है, इस तरीके ना जॉब नूं रख दिता जाता जिन्हों आपां वैल्ड करना है। ठीक है, दो होणगे इहदे विच किसी जॉब नूं ते ये जदों व्हील्स घूमने स्टार्ट करने आ ये ते इन्हां दे नाल इन्हूं वैल्ड करी जाना वा। ओके, इनू की कहंदे ने सीम वैल्डिंग, रोलर ही आ गया ना। ओके, ये सी ऑप्शन जी इहदी करैक्ट ऑप्शन है। नैक्सट है सिनुसाइडल वोल्टेज एक्सप्रैसड एज E इज इक्वल टू 10 sin 100 pi t 100 pi t। फाइंड द इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। आप फाइंड की करनी है V करनी है। ओके, तो ये की है साढ़े कोल VM मैक्सिमम जी वोल्टेज है एट टाइम दिता होया वा कि इस टाइम के उत्ते आपां वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी आ आफ्टर द इंस्टेंट ऑफ द वोल्टेज इज 0, आफ्टर द इंस्टेंट द वोल्टेज इज 0। ओके, इनू सिंपली की करांगे, सिंपल तरीके दे नाल ही आपां इनू फाइंड कर देना वा। टाइम साढ़े को गिवन है 100, टाइम कितना दिता होया वा इत्थे 100 पाई आ जाएगा, टाइम हैगा वा T इज इक्वल टू 1/600, 600 ला दा, जीरो दे नाल जीरो कैंसल हो गई। ठीक है, ये 1/6 आ जाएगा। ठीक है, 100 sin π/6। ठीक है, हुण पाई की वैल्यू होंगी 180 डिग्री, 6 ना करा कितना रह जाएगा 30 डिग्री आ गया। ओके, 100 sin ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। हुण 30 डिग्री sin 30 डिग्री के इक्वल होंदा है 0.5 दे 1/2 दे होंदा है। इस करके की आ जाएगा E इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कैंसल हो गया, कितना आ गया 50। यदा मतलब यदा सही आंसर की है ए ऑप्शन जी बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट है अ 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स फ्रॉम अ 50 हर्ट्ज सप्लाई। फाइंड द स्पीड ऑफ अ रोटर इज द स्लिप इज 0.06। हुण फाइंड की करना, आप स्पीड करनी है रोटर की फाइंड। उस तो सब तो पहला सानू NS कढ़ना पएगा। NS के इक्वल आ गया 120F डिवाइडेड बाय P। 120F कितना 50, P कितना है 4,
ओके कितना आ जाएगा 1500 RPM आ गया। नैक्सट आप रोटर स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ रोटर, वो की आ जाएगा NS1 माइनस S। NS की वैल्यू कितनी है 1500, 1 माइनस 0.06, ये कितना आ जाएगा 1590, आ गया 1500 माइनस 90, ये आ जाएगा 1410 RPM। इसका सही आंसर की है 1410 RPM। नैक्सट है इल्यूमिनेशन इज मैजर्ड इन। इल्यूमिनेशन आप किच मेजर करते हैं, ठीक है, इनू करते हैं ल्यूमनस पर मीटर स्क्वेयर मीटर, ल्यूमनस पर स्क्वेयर मीटर। ओके और लक्स जे इहदी जगह ते लक्स भी लिखा होंदा तां भी तुहाडा आंसर ठीक सी, ठीक है, इहदा की आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है एन alternators having the rating in megawatt range have to be equipped with hollow water cooled conductors। ਜਿਹੜੇ ਹੋਲੋ ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਲੋ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਈਪ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੋ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟਿਲਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੀਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਲਟਰਨੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਟਰਨੇਟਰ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਰੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੇਸ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੋਣਗੇ ਫੇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋਲੋ ਵਾਟਰ ਕੂਲਡ ਕੰਡਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ which of the following is not used to make filament of the incandescent lamp। सिल्वर नहीं आप यूज करते। नेक्स्ट है which of the following instrument can directly measure the pressure। बर्डन ट्यूब, ठीक है, बर्डन ट्यूब आ डायरैक्टली करती है प्रैशर मेजर करती है, ठीक है। ये पायरोमीटर जोड़ा वा वो टैंपरेचर मेजर करता है। दैन टैकोमीटर जोड़ा वा वो स्पीड जी रोटेटिंग जिदा मोटर वगैरह की स्पीड में मेजर करना हो उत्थे आपां नूं यूज़ करते हैं, ठीक है। दी सही ऑप्शन है बर्डन ट्यूब। नैक्सट है अ लूप विच डज नॉट कंटेन्स एनी अदर लूप विद इन इज कॉल्ड मैश। मैश दे विच होर लूप नहीं हो सकता, ठीक है। जिदा सपोज करो कि एक सर्किट है मेरे को, ठीक है, इत्थे कोई सोर्स लगाता मैं, तो आ मैश है, आ भी मैश है, ठीक है। ये लूप है, ठीक है, मतलब ये एलीमेंटरी लूप हुंदा है, इस तो छोटा लूप नहीं हो सकता, ओके। लूप जिहड़ा इनू आपां लूप कह सकते हैं। आ देखो ये I1 ने, ये I2 कह लो, तो ये I कह लो, ओके। ये सही ऑप्शन की है बी मैश। अ वॉटमीटर रीड्स 25.34 watts। The absolute error in the measurement is minus 0.11 watt। Determine the true value या value, okay। Determine the value of, अपन वैल्यू यदि फाइंड करनी है, ठीक है। एक्चुअल ट्रू वैल्यू जी है वो फाइंड करनी है। सब तो पहला मेजर्ड वैल्यू कितनी है, मेजर्ड वैल्यू ये हैगी 25.34 वॉट्स, ओके। दैन एब्सोल्यूट एरर कितनी है, एब्सोल्यूट एरर हैगी -0.11 वॉट, ये भी वॉट्स के विच ही होएगी, ओके। दैन एब्सोल्यूट एरर के इक्वल होंदी है, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू measured value minus true value, measured value minus true value, true value, ओके। हुण ट्रू वैल्यू के इक्वल आ गई, ट्रू वैल्यू आप फाइंड करनी है। ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू 25.34 माइनस, तो अभी माइनस ही आ क्योंकि एरर उधर चल गई है ना, तो माइनस की हो जाएगी
0.11 ये भी माइनस ही आ, ठीक है। ये आ गया 25.34 प्लस 11 ये कितना आ जाएगा 25.45, ठीक है। कितना आ गया 25.45, यदि सही ऑप्शन की है सी ऑप्शन सही है। ओके नेक्स्ट है इन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर्स नाइदर प्रेशर कॉइल नॉर करंट कॉइल इज मूविंग, ठीक है। इस तरीके की शंट कॉइल होंदी है, ठीक है, तो आ करंट कॉइल होंदी है, ये डिस्क मूव करती है। ओके ना तो शंट कॉइल मतलब प्रैशर कॉइल मूव करती है तो ना ही शंट कॉइल जी सीरीज़ कॉइल जी सीरीज़ मैगनेट वो मूव करती है। ओके नेक्स्ट है फाइंड द करंट आई इन द सर्किट शॉन बिलो, ठीक है। जोड़ा आपां इहदे विच की फाइंड करना है कि करंट आई की वैल्यू आपां फाइंड करनी है। सब तो पहला की करांगे ये दोनों पैरेलल च ने, ये आपां फाइंड कर लेने ये की आ जाएगा आर टी यदि इक्विवेलेंट रजिस्टेंस फाइंड कर लीए ये कितना आ जाएगा 40 × 60 40 + 60। ओके ये आ गया 2400 डिवाइडेड बाय 100 कितनी आ जाएगी 24 ओम। ओके साढ़े कोल सर्किट की बनया जो आप रीड्रा किया 4 वोल्ट 16 ओम डिवाइडेड बाय 24 ओम। हुण ये सीरीज़ दे विच ने सो इन्होंने दोवां नूं प्लस कर देंगे आपां। ये की सर्किट फिर जे मैं रीड्रा नैक्सट करदा सर्किट तो की मेरे को आ जाएगा ये आ जाएगी 40 ओम, ये की है 4 वोल्ट तो V = IR I = V/R। ओके हुण V कितना है V की वैल्यू हैगी है 4 तो R कितनी है 40 कितना आ जाएगा 0.1 एम्पीयर, ठीक है। यदि ऑप्शन की है सी ऑप्शन जी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नैक्सट है इन मैगनैटिक सर्किट एम्पीयर टर्न इज़ द यूनिट ऑफ मैगनैटोमोटिव फोर्स, ठीक है। MMF नूं कहंदे मैगनैटोमोटिव फोर्स ये किहदे इक्वल होंदी है N × I दे, N नूं आपां T कहता तो ये की है साडा I की है A एम्पीयर टर्नस, ठीक है 80। नेक्स्ट की है इन थर्मल पावर प्लांट स्मॉल पीसेस ऑफ कोल मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू फाइन पाउडर्ड पार्टिकल्स, दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय कोल पल्वेराइजर। कोल पल्वेराइजर की करता वा कि जेडे मतलब कोल हुंदा ना बिल्कुल कह लो कि स्मॉल फाइन पार्टिकल्स दे विच कन्वर्ट कर दिंदा है। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग टैरिफ इज़ अ 3-part टैरिफ, यह हैगा दुहट्टी रेट। 3 पार्ट का मतलब की है A B × KW प्लस C × KWH। ए की है फिक्स चार्जेस, B की है मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड के जोड़े चार्जेस पैने पर किलो वॉट मैक्सिमम डिमांड, तो ये की है एनर्जी कंज्यूम्ड। ओके ये 3-part टैरिफ ये इनू कहते हैं। नैक्सट है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ नॉन मैगनैटिक मटीरियल इज़ यूनिटी, ठीक है। जोड़े नॉन मैगनैटिक मटीरियल किहड़े हो सकते हैं इस वुड हो सकती है नॉन मैगनैटिक मटीरियल की हो सकता वुड ग्लास कॉपर एलूमीनियम एटसैक्ट्रा, ठीक है। ये जोड़े नॉन मैगनैटिक मटीरियल ने। ओके तो जी इन्हें रिलेटिव अपनी कह लो कि की होंगी है 1 के करीब होंगी है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग एलीमेंट इज़ नॉट फाउंड इन द हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्लांट, सुपर हीटर स्पिलवेज भी होंगे कंड्यूट्स भी होंगे ने डैम भी होंगे हाइड्रो पावर प्लांट के विच, बट सुपर हीटर नहीं होंगे। सुपर हीटर थर्मल पावर प्लांट के यूज़ करते हैं सैचूरेटेड स्टीम नूं सुपर हीटेड स्टीम के कन्वर्ट करने लिए। नैक्सट है फॉर अ स्पैसीफिक एटम एटॉमिक वेट, ठीक है। एटॉमिक वेट नूं आपां A दे नाल डिनोट करते हैं, कितना आ गया 108,
ठीक है, एंड द एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है 47। ओके, तो फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आप न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। न्यूट्रॉन्स की आप कितना फाइंड करांगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। ओके, ये की आ जाएगा 108 माइनस 47 इज इक्वल टू 61। ये सही आंसर की है 61, डी ऑप्शन जी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है फॉर द सर्किट शोन बिलो फाइंड द करंट आई नोट। हुण इहदे विच की करांगे आपां KCL जिहड़ा वो अप्लाई करांगे। ठीक है, अप्लाई KCL किरचॉफ करंट लॉ एट पॉइंट ए। ठीक है, इस पॉइंट के उत्ते आपां अप्लाई करांगे। की आ जाएगा साढ़े को आई नॉट, ठीक है, आई नॉट जा रहा है ना, इज इक्वल टू 0.5 आई नॉट प्लस 3। ओके, हुण इनू आपां इधर खड़ांगे, की आ जाएगा आई नॉट माइनस 0.5 आई नॉट इज इक्वल टू 3। ये आ गया साढ़े कोल 0.5 आई नॉट इज इक्वल टू 3। तो आई नॉट आ जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू 3 बाय 0.5 कितना आ जाएगा 6 एम्पीयर। ठीक है, कितना आंसर बी आ जाएगा 6 एम्पीयर। ठीक है, आई नॉट की वैल्यू कितनी है 6 एम्पीयर। इन अ थर्मल पावर प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल ड्राफ्ट। ठीक है, ये की है जो चिमनी ड्राफ्ट आ मैकेनिकल ड्राफ्ट नहीं है। मैकेनिकल ड्राफ्ट होंदा वा आर्टिफिशियल ड्राफ्ट दे विच। ठीक है, मैकेनिकल ड्राफ्ट दे विच आर्टिफिशियल आ जाता। आर्टिफिशियल दे विच तुसीं ला लो कि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट आ जाता है, बैलेंस ड्राफ्ट आ जाता है, फोर्स ड्राफ्ट आ जाता है। ठीक है, इंड्यूस्ड फोर्स ते बैलेंस जिहड़े मैकेनिकल च आउंदे, बट चिमनी ड्राफ्ट नहीं होंदा, ये नैचुरल ड्राफ्ट हुंदा है। ओके, ड्राफ्ट का मतलब यही होंदा कि उन्हें जिहड़ी एयर रिक्वायर्ड आ कंबशन वास्ते वो सप्लाई करनी हुंदी है। एक सिस्टम हुंदा थर्मल पावर प्लांट दे विच, ते जिहड़ी एयर रिक्वायर्ड वा कंबशन दे लई वो करनी हुंदी है, ते रिमूव करने हुंदे जिहड़े डस्ट जिहड़े मतलब पार्टिकल प्रोडक्ट्स ने। ठीक है, उन्होंने रिमूव करना होंदा है आफ्टर कंबशन। ओके, a sinusoidal voltage is represented by an equation E is equal to 314 sin 40 pi t. Find the angular velocity. Angular velocity omega t is equal to 40 phi omega t, दोनों करता। ठीक है, एक ही बच गया साढ़े को 40 पाई। 40 पाई जिहड़ा वो साढ़ा आंसर है, बी आंसर है। रेडियन पर सैकेंड जिहड़ा ओहदा यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी दा। ओके, 40 पाई रेडियंस पर सैकेंड। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल, कोल वगैरह। ठीक है, पत्थर राटी बालन कहते इनू। ठीक है, पत्थर राटी बालन। ओके, फॉसिल फ्यूल। नैक्सट है 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज 6 स्टेटर पोल्स। If supply frequency is 50 Hz, find the synchronous speed. Ns is equal to 120 F divided by P. 120 F कितना 50 पोल किन्ने 6 कितना आ जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना आ गया 1000। ठीक है, 1000 RPM जिहड़ा वा साडा आंसर होएगा। ओके, द रजिस्टिविटी ऑफ डैश इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टैंपरेचर। हुण देखो कॉपर कंडक्टिंग मटीरियल है, माइका ग्लास ते रबड़ जिहड़े इंसुलेटिंग मटीरियल ने। ओके, इहदा सही आंसर की है कॉपर। कॉपर हुंदा वा पॉजिटिव टैंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कंडक्टर्स हैव पॉजिटिव टैंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कि टैंपरेचर वधन दे नाल रेजिस्टेंस भी वधेगी। ओके, तो जिहड़े इंसुलेटिंग ते सैमी कंडक्टिंग मटीरियल्स होंदे ने वो नैगेटिव टैंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होंदे ने, कि टैंपरेचर वधन दे नाल उन्हां दी जिहड़ी रेजिस्टेंस आ वो घटेगी। नैक्सट है 2 coils
having self inductance of 20H and 5H are tightly coupled, find the maximum value of mutual inductance between the coils. ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, M इज इक्वल टू K L1 इंटू L2। ਹੁਣ K ਆਪਾਂ 1 ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣੀ ਨਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਕਰਤੀ। M इज इक्वल टू L1 कितनी है 20 तो L2 कितनी है 5। M इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 10H। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी है 10H। नैक्सट है फाइंड करंट I2। आप वैल्यू फाइंड करनी है इन दी फॉलोइंग सर्किट, इन दी फॉलोइंग सर्किट। ओके, ये किस तरह फाइंड करांगे, 36 इक्वेशन आप लाती है, 36 इज इक्वल टू 2I1 प्लस 12I1 माइनस I2 क्योंकि इन्हें दोनों डायरेक्शन अलग अलग है, प्लस 4I1। सिमिलरली 24 दिता है, ये भी कितना आ जाएगा साढ़े कोल 3I2 प्लस 12I2 माइनस I1 प्लस 9I2। ओके, आ इक्वेशन 1 ने, आ इक्वेशन 2 है। इन्होंने दोनों इक्वेशनस नूं सॉल्व करके साढ़े को की आ जाएगा 0 एम्पीयर आ जाएगा। ओके, I2 की वैल्यू कि इक्वल आ जाएगी 0। नैक्सट है इन सिंक्रोनस मोटर मिनिमम आर्मेचर करंट कोरस्पोंडेंस टू यूनिटी पावर फैक्टर। ओके, सी ए दी ऑप्शन यूनिटी पावर फैक्टर होएगा तो मिनिमम सिंक्रोनस करंट आर्मेचर करंट होएगा सिंक्रोनस मोटर दे विच। ओके, नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल इज यूजली यूज्ड एज टाइम बेस्ड सिग्नल इन CRO, सातुत सिग्नल। ठीक है, सातुत सिग्नल जिहड़ा वा वो यूज करते हैं आपां कादे वास्ते, टाइम बेस्ड सिग्नल वास्ते। ठीक है, नैक्सट है अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 0.25 माइक्रोफैरड इज चार्ज टू अ वोल्टेज 50 वोल्ट, फाइंड द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर। इसका फॉर्मूला होंदा Q इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। कैपेसिटेंस कितनी आ इंटू 10 रेज़ दी पावर -6 क्योंकि माइक्रो का मतलब होंदा वा 10 रेज़ दी पावर -6 इंटू 50। ओके, तो ये वैल्यू साढ़े को कितनी आ जाएगी 12.5 माइक्रो कूलम्ब। कूलम्ब इसका यूनिट है चार्ज का। ओके, इसकी ऑप्शन की है बी। नैक्सट है अ सोर्स DC source 10 volt with internal resistance of 3 ohm is connected to a resistor RL. Maximum transfer of power from a source to load takes place when RL is equal to RL equals के होएगी। ठीक है, लोड रजिस्टेंस के इक्वल होएगी। सानू पता है कि जो इंटरनल रजिस्टेंस इक्वल हो जाए लोड रजिस्टेंस से उदों मैक्सिमम पावर जी ट्रांसफर होएगी। हुण इंटरनल रजिस्टेंस सोर्स की कितनी है 3, यदा मतलब RL भी कितनी होएगी 3। यदि डायरेक्ट ऑप्शन करैक्ट ऑप्शन केड़ी है ए। ठीक है, 3 ओम आंसर हो यदा सही है। नैक्सट इन थर्मल पावर प्लांट डैश इज हीट एक्सचेंजर which heat is transferred to saturated steam to increase its temperature। ओके, वो केड़ा है डी ऑप्शन है। ठीक है, ये की करता जी सैचुरेटेड स्टीम होंगी, सैचुरेटेड स्टीम होंगी वैट स्टीम। ठीक है, इनू हीट करने वास्ते, ठीक है, टैंपरेचर उहदा वधाउण वास्ते आपां यूज़ करते हैं सुपर हीटर। नैक्सट है इन अल्टरनेटर इफ द कॉयल स्पैन fall short of full pitch by an electrical angle alpha, then the pitch factor equal ਹੁੰਦਾ ਵਾ pitch factor is equal to cos alpha by 2। ओके, ये ऑप्शन जी वो करैक्ट ऑप्शन है। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर की है बी ऑप्शन।
ठीक है। इट हैज़ कंसिडरेबल आई स्केयर आर लॉसिस, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर दे विच तो लॉस ही नहीं होंदा। सो जिहड़ी बी आ वो रॉन्ग है, रॉन्ग स्टेटमेंट है इन्हां चारे ऑप्शनस दे विच। ठीक है, फिर करैक्ट ऑप्शन किहड़ी है? बी है, इट हैज़ कंसिडरेबल आई स्केयर आर लॉसिस। नेक्स्ट है इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट द मैक्सिमम करंट इज 100 एम्पीयर, what will be the current at upper or lower cut off frequency? ओके, हुण आपां करंट फाइंड करना वा अपर और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी। ठीक है, ये की आ, ये मैक्सिमम हुंदी है फ्रीक्वेंसी कह लो। ओके, F0, F1 लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, F2 अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आ जो पॉइंट मीट करता है कि इक्वल होंदा मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय √2, तो आ की है IM मैक्सिमम करंट। तो अपन चाहिए कि लोअर या अपर के उत्ते फ्रीक्वेंसी आप फाइंड करनी है, करंट फाइंड करना सॉरी। तो एक इक्वल आ जाएगा IM डिवाइडेड बाय √2, मतलब 100 √2, ये कितना आ गया 70.7 एम्पीयर, 70.7 एम्पीयर। ओके, यदि ऑप्शन की है डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स इज नॉट डिजायरेबल इन मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स? ड्रिफ्ट। ठीक है, बाकी जेडे वो जरूरी करैक्टरिस्टिक्स ने। ठीक है, बाकी डिजायरेबल करैक्टरिस्टिक्स ने जोड़ा वा वो अपना ऑप्शन ताड़ी बिल्कुल सही है। तो जोड़ा पेपर सॉल्व करवाया इस टैक्नीकल पोर्शन ही मैं कला कवर करवाया है। सो तुसी इहदी प्रैक्टिस कर लियो। क्वेश्चन काफ़ी सौखे ही STU लैवल दे ते है नहीं सी, कई क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान ही, इहदे नालों ते टफ जिहड़ा JEE दा पेपर सी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।